What's up? Yeah, we're doing equilibrium आज. Hello. I think I started talking before the stream started. Anyway, how you all doing? आवाज साफ आ रही है? Wait, let me see. You should see me right about now. हाँ. So last week I did some questions on mole concept and also some questions on solid state PYQs. In fact, mole concept में तो we did a few advanced numericals as well, right? And some of you suggested in the live chat and the comment said, let's do equilibrium, let's do thermo, let's do. आपने दो तीन मुझे choices दी. So I thought, okay, let's start with the equilibrium right now, and we'll do thermo next time. That's my plan as of now. If you want me to change it, कुछ और करना है तो open to inputs. But आज हम लोग करेंगे equilibrium two different parts में. Are you able to hear me? Are you able to see me? A quick question about everything. सब सुनाई दे रहा है, सब दिख रहा है. Yeah, let's just get all of that out of the way. So that's the plan, right? And the way I want to do this is, yeah, I know that same ही चीज है, equilibrium part 1 और part 2, right? So we'll have a small break between the two sessions. That's all there is. हम लोग करेंगे PYQs from the really basic ones all the way to the ones that are slightly hard. But what I've seen is कि जो सवाल आ रहे हैं आजकल पेपर में, they are a little easier as compared to 2020, 2019, 2018. That's good in a way कि maybe you can attempt it better, but also competition ज्यादा है. So ध्यान से करने वाली चीज अभी है. Yeah. Whoa. Hey. Okay. Great, उत्तम. Hey, Rex, Sumit, Vijay. Hi. अच्छा है कि सब सुनाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है. So this is what I'm gonna do, right? I will give you the notes of this session on Telegram as soon as the second session gets over. ठीक है? And yeah, I've got a little bit of theory, like 3-4 slides of theory, and we'll do questions. I'm just gonna quickly show you what it looks like, okay? So that navigate करने में आसानी हो. देखो मेरे पीछे यहाँ पे link to part 1, link to part 2 दिया हुआ है. These are YouTube links, okay? So in PDFs में you'll be able to actually click and come back to the video and check whatever. ठीक है? That's how I organize this session. So tension मत लो. Just get a pen and paper, okay, and solve. Don't have to take notes or anything. I'll give you this PDF. ठीक है? सवाल होगा, सब होगा, जो भी हम लोग लिखना, everything will be there on Telegram. That's in the link in the description नीचे. ठीक है? I've also linked some theory sessions from the NEET channel that I teach on. But don't think अरे NEET में कुछ अलग है, JEE में कुछ अलग है. Theory same है. ठीक है? In fact मैंने उनको जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया, to be honest, and like buffers and especially solubility वाले में. So all that is also there. Yeah, you can check it out. All right, chalo, let's get started right away. All good? Yeah? What's on my screen is the idea of equilibrium constant, right? It says that, okay, K equilibrium constant is defined as two rates. Rate of what? Forward reaction to the backward reaction. Okay, it's a ratio of both of this. Chota K यानी कि rate constant. Bada K यानी equilibrium constant. You know all of this, but I'm just quickly giving you a recap of what you need to know. मेरे इस तरफ है कुछ graphs. Yeah, this is just trying to tell you कि thermodynamics और equilibrium में क्या नाता है. Okay, ln k is a function of delta h. How? अगर एंथैल्पी है रिएक्शन की नेगेटिव तो टेम्परेचर बढ़ाने पे k की वैल्यू बढ़ जाएगी. अगर एंथैल्पी है पॉजिटिव यानी कि हमने उल्टा बोल दिया, जब ग्राफ में देख लेते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है ना. देखो जब एंथैल्पी है नेगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ln k वर्सेस 1/t इज अ पॉजिटिव स्लोप, यानी कि as t increases k will fall. ओके, एक्सोथर्मिक में. एंडोथर्मिक में यहीं पे कर लेते हैं, k increases temperature increases. ठीक है, this straightforward. कुछ इक्वेशन लिखी हुई हैं. This is another equation you need to know, Van 't Hoff factor, Van 't Hoff equation, etc. खैर ये सब थर्मोडायनेमिक्स में भी है, बट सोचा यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्योंकि जेईई एडवांस में दोनों चीज मिक्स एंड मैच हो जाती हैं. Shall we start with the question already? Yeah, sure dude उत्तम, we'll do whatever possible. जितना पॉसिबल हम लोग करेंगे, but remember this is a PYQ session. If you want a deeper explanation, I've done this properly on the NEET channel. आप उस पे जाके पूरा थ्योरी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट मेरे से पूछ लीजिए, हम लोग विल कवर इट. चलो देखो इस टाइप के सवाल आए. दिस इज फ्रॉम 2023 अप्रैल वाला शिफ्ट में से ये सवाल है मेरे सर के ऊपर जो है. ट्राई करो, बहुत डायरेक्ट लग रहा है, बस ध्यान से थ्योरी पढ़ने वाली बात है. ऑल यू हैव टू डू इज रीड द एनसीईआरटी और ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं. देखो, the number of correct statements involving equilibria in physical processes from the following is: equilibrium is possible only in closed system at a given temperature. Both the opposing processes occur at the same rate. When equilibrium is attained at a given temperature, the value of all its parameters become equal. And the last point is for dissolution of solids in liquids, the solubility is constant at a given temperature. Now, in चारों सवालों में try करो, give me answer. What do you think? Right? What's the number of statements that are correct? So see, यहां आपको पढ़ने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन. मैंने चुन चुन के ऐसे सवाल दिए हैं जिनमें हर सवाल से कुछ एक और अंदर से चीज बाहर आ रही है.
From here, the main takeaway is you gotta read NCERT inside out. और ध्यान से सवाल को भी पढ़िए, ठीक है? Answer is very, very direct. If you want me to explain it to you, I can. It's very doable, okay? No big deal whatsoever. But what do you guys think? आप लोग मुझे अपना आइडिया दीजिए. What do you think? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए. Don't need all of that. कुछ नहीं चाहिए भाई, वो सब नहीं चाहिए. बात सुनो, NCERT करो, एग्जाम्पलर तक करो, मोर देन इनफ. PYQs, NCERT, एग्जाम्पलर. पढ़ना है तो बुक सिर्फ एक है, जूम डाल. फॉर फिजिकल केमिस्ट्री देयर इज वन बुक, ओके. फॉर एडवांस्ड अगर आपको मेन के लिए चाहिए तो स्टडी एबिंग, और कोई रैंडम बुक्स मत पढ़िए, ठीक है? दिस मे बी अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, बट ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स. पहले इसको आप सॉल्व करो, कॉम्प्लेक्स. सॉल्व दिस क्वेश्चन मैन, दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, वी आर स्टार्टिंग ऑफ वेरी इजीली, ओके. व्हाट डू यू थिंक? इक्विलिब्रियम पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम? ऑफ कोर्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिकल दोनों में. Both the opposing processes occur at the same rate? Absolutely. Kf, okay? Kf, small kf equal to small kb. That's how you say that a system is at equilibrium. Now, this one obviously is not correct. When equilibrium is attained at a given temperature, the value of all its parameters become equal. क्यों भाई? सारे parameter equal क्यों होंगे? Why will concentration become equal? That's not going to happen, right? This is your distractor, hence this is the incorrect question, incorrect option. बहुत जल्दी से इसको हटा सकते हो. Last वाला, for dissolution of solids and liquids, the solubility is constant at a constant temperature. Exactly, absolutely. ये तो है, solubility is only a function of temperature, and this is something you know. Okay, awesome. 3, absolutely right. Rec and Uttam, you're right as well. You're अरे बहुत अच्छा काम, complex, but वो सब extra चीज बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? You focus on अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? Random time pass की बात करनी है? We'll chat on Telegram. I teach Chem. Ping me there. Let's focus on equilibrium right now. General ज्ञान की बात यहाँ पे नहीं होगी. Cool. Because there are a lot of friends who watch this afterwards, है ना? और उनको बोलेगा कि यार ये क्या टाइम पास हो रहा है, right? So we want to make this a quick action-packed session, which means कोई डाउट है इस सवाल के बारे में पूछो, we'll discuss it. General things, Telegram, not here, okay? 3 is the answer over here, okay? ये वाला clearly गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है. All right, yes. Solubility more, precipitation low. I don't fully follow that. Solubility more, precipitation low is sure, okay, maybe. Okay, great, Uttam, yes, absolutely. So 3 is right answer, rec. Good going. Starting off easy. Let's take it up a notch right now. Take it up थोड़ा सा. Yeah, ये भी सब JEE के ही PYQs हैं. ये शायद 21 का. I'll have to check exactly. But again, this is a direct one. Okay. The equilibrium constant for the reaction N2 plus O2 giving 2NO at temperature is some value. Kc for this reaction क्या होगा? अब you know what you have to do. इस question में आपको बस ये करना है कि अच्छा you have to reverse reaction, maybe multiply or divide by some factor. और यही चीज ध्यान रखनी है. If you reverse a reaction, K dash becomes 1 by K. If you multiply it with some number, then it becomes K power that number. That's all. Okay. Multiply by 2 is the same as divide by 1 by 2. ठीक है? It's the same thing. सोचो इसके बारे में. ठीक है? So, anyway, whether you multiply by 2 or 1 by 2, power K power that हो जाता है. Try it out. इसको try करो. What I'm going to do is I'm going to give you some time to solve this question. Okay. Let's say, according to me, ये 30 seconds लेने चाहिए. So let's start that. Take 30 seconds. Try and solve this question. अच्छा 30 सेकंड भी नहीं, सही है. ये आप सवाल कर चुके हो, नहीं किए हो तो बहुत अच्छी बात है. जल्दी कर रहे हो तो और भी अच्छा है. दैट्स ब्यूटीफुल. रेक, पीयूष एंड कॉम्प्लेक्स तीनों लोग बोल रहे हैं 50. एक्सीलेंट वर्क. उत्तम ऑल्सो. आई लव दिस मैन, यू गाइस आर स्मार्ट एंड फास्ट. बढ़िया. देखो ये वाला आप लोग कर बहुत जल्दी कर लिए, बट देखो पहले वाले सवाल में टाइम लगा. नाउ व्हाट डज दिस टेल यू? पहला वाला सवाल मेरे हिसाब से ज्यादा आसान था यार. इसमें तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसमें तो बस थ्योरी थी. मतलब एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो. Extra books that you're suggesting are nice. NCERT ध्यान से पढ़ो and get your reading speed up to the mark. Okay, solve a lot of PYQs. All of you are correct, but for our friends who are watching it after the live is done, let's quickly explain this. What's the theory behind this? कैसे करते हैं इसको? I have my expression over here. ठीक है? Initially मुझे दिया हुआ है ये, and इसका मुझे निकालना है. So I have to perform some operation on this first reaction to get to the final one. Okay. Now what do I do? It looks like कि N2 यहाँ पे LHS में है, यहाँ पे RHS में. तो पहले तो हम इस रिएक्शन को कर देंगे रिवर्स. इफ यू रिवर्स द रिएक्शन, ये K की वैल्यू हो जाएगी 1 by K. ठीक है? रिवर्स तो कर दिया, बट रिवर्स करने के बाद, अरे बाप रे, रिवर्स करने के बाद मुझे आधा भी करना पड़ेगा, राइट? सो देखो, रिवर्स करने के बाद हो गया, दिस इज 1 by K, राइट? And then I've also made it half. I've multiplied the whole thing, divided the whole thing by 2. Then I've got to put a root under it. So what I get over here is finally this, which is 1 by root of Kc. That's all. तो यहाँ पे था 4 into 10 power 4. 1 by root of that is simply 4 into 10 power minus 4. So this is 1 by 2 into 10 power minus 2. That is 100 divided by 2, which is 50. All of you got the right answer. Beautiful.
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, यस 100% उत्तम इन कॉम्प्लेक्स। हाँ कॉम्प्लेक्स, इसमें वो वाला आइडिया हमको यूज करने की जरूरत नहीं थी। ओके सोहेल जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बट यस आई हैव टू ट्राई एंड फिगर आउट कि वो जो आप एक्सप्रेशन बोल रहे हैं वो भी सही हो सकता है। श्योर श्योर श्योर, यहां पे जरूरत नहीं थी एज यू कैन सी। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, यूर राइट टू कॉम्प्लेक्स, गुड वर्क। अगला सवाल ये वाला इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करना। सिंपल है बट थोड़ा ध्यान से करने वाला है। A flask containing 0.5 atmospheric pressure of A2 gas, some solid AB added into flask which undergoes dissociation according to ये वाला reaction. Okay, 2AB gives you A2 plus B2. Reaction stoichiometry देखो, 2 is giving you 1:1, but that 2 doesn't matter so much, वो तो 2 solid है। ठीक है, keep that in mind, keep that in mind. Kp की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एट इक्विलिब्रियम। तो दो तीन चीजें करनी है। डू यू नो व्हाट टू डू हियर? या पहले आपको इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन सेटअप करना है, उसके बाद यू हैव टू फाइंड अच्छा टोटल मोल्स विल गिव यू टोटल प्रेशर, बस खत्म। दैट्स ब्रॉडली इट। बट आपको यहां पे मोल फ्रैक्शन का आइडिया यूज करना है नहीं करना है, थिंक अबाउट इट, ट्राई एंड सॉल्व दिस। बट ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाले करने वाली चीज है। देखिए यू डोंट नीड एनी फैंसी बुक फॉर दिस, जस्ट एनसीईआरटी के बेसिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट बी केयरफुल, मेक नोट ऑफ द फैक्ट कि यहां पे AB इज अ सॉलिड। ठीक है, ट्राई करिए। आई हैव हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड ऑब्वियसली ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। टेक 1 होल मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक पूरा मिनट लेते हैं, ट्राई करिए। या लेट्स डू दिस। ये भी PYQ ही है, सारे PYQ इन फैक्ट, बट दिस इज नॉट फ्रॉम 2023, थोड़ा पुराना है, थोड़ा पुराना है। या ट्राई इट आउट। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, आई एम हियर टू हेल्प यू, बट आई एम गोना गिव यू गाइस अराउंड 40 मोर सेकंड्स आई गेस बचे होंगे, तो ट्राई करो, ट्राई करो। मेथड इज द सेम, सेट अप द एक्सप्रेशन, ओके, एट t इक्वल टू 0 0 0 क्या क्या है, बट 0 0 नहीं होगा, 0.5 होगा, राइट। एट t इक्वल टू 0 ये होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अच्छा 0.5 प्लस सम x, है ना, और B2 का x, तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0.5 प्लस x इंटू x इज इक्वल टू 0.06। फर्स्ट प्रिंसिपल से करने वाली चीज, यू कैन नॉट इग्नोर थिंग्स। यहां पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको करना है सॉल्व। वंस यू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू गेट इंटरेस्टिंग थिंग्स। शैल आई गो अहेड एंड गिव यू द सॉल्यूशन, या आप लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं? इफ यू वांट मोर टाइम टू सॉल्व इट बताइए, आई विल गिव यू ऑल द टाइम यू नीड। ये तो बस मैं एक एग्जाम मोड सिमुलेट करने के लिए मैंने टाइमर डाला था। टाइमर इतना जरूरी नहीं है, अभी नहीं हो रहा है 1 मिनट में तो ओके, टेस्ट में फाइनली यू शुड गेट टू अ पॉइंट वेयर मे बी 1-1.5 मिनट में ये वाला सवाल हो जाए, एंड दैट जस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। खैर, यू वांट मोर टाइम और डू यू वांट मी टू गिव यू द सॉल्यूशन? व्हाट डू यू वांट? मैंने ऊपर ऊपर से आइडिया आपको बता ही दिया है क्या करना है। पहला स्टेप मैं यहां पे लिख देता हूं आपको। पहला स्टेप, लेट मी जस्ट राइट, ओके, सो आई हैव 2AB गिविंग यू A2 एंड B2, and initial amount of A2 is 0.5 atmosphere, it is not 0, okay, यही सवाल में दिया था, ये जरूरी चीज है। this is called thin slicing, जो आपने सवाल पढ़ा। take the things that are important from there and write it down, highlight करके उससे get the crux, what's the first point, that's the key concept, finding the equilibrium pressure, right? So the pressure here initially is simply 0.5 atmosphere, finally क्या है हमको नहीं मालूम है। कोई ट्राई कर रहा है ये सवाल या मुश्किल हो गया आपके लिए? बताइए, what do you guys think, what do you guys think? एक सेकेंड, ये भाई साहब इसमें इंक हैंग हो गया थोड़ा सा, खैर नेवर माइंड। या देयर यू गो, आर यू गाइस ट्राइंग दिस? यू वांट मी टू सॉल्व इट फॉर यू? मुश्किल होगा क्या ये वाला? थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा मैथ्स है, आई डोंट थिंक मुश्किल है, बट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मैथ दैट्स देयर। इट्स ऑल राइट आदित्य, गुड इवनिंग, कोई चक्कर नहीं है, वी आर डूइंग 2 सेशंस बैक टू बैक विद अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप, तो वी विल पिक अप द स्पीड, डोंट वरी, डोंट वरी, इट्स ओके क्रिश, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग साथ में करेंगे, राइट। द गोल ऑफ दिस इज अ लर्निंग एक्सरसाइज, राइट। आप जब टेस्ट करोगे तब आप टेस्ट करना, टेस्ट आराम से लेना। सो आई विल टेल यू व्हाट, इस सवाल का मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूं, राइट। आई हैव गिवन यू क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्राई इट, नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, लेट मी टेल यू। आई थिंक यू आर टू यूज्ड टू टेकिंग दैट शॉर्टकट, वो होता है ना कि अरे लेट्स इग्नोर वन थिंग एंड यू डू दिस, ये फॉर्मूला यूज करो। आई एम हियर टू वार्न यू अगेंस्ट दैट स्टाइल ऑफ लर्निंग। मैं बहुत प्यार से आपको बता रहा हूं, दैट इज नॉट हाउ JEE मेन इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। सवाल आसान है, सवाल मुश्किल नहीं है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। देखो कैसे करना है फर्स्ट प्रिंसिपल पे, राइट दिस डाउन, राइट व्हाट डाउन, राइट डाउन दैट यू हैव टू एट इक्विलिब्रियम यू आर गोइंग टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ सेटअप, ओके। थोड़ा सा और डिसोसिएट हो गया, वही थोड़ा सा जितना डिसोसिएट था उतना ही B2 ऐड हुआ,
So x and x is there. Now I don't know this pressure. This is what I have to find out. This is going to be my answer. ठीक है, equilibrium pressure. Equilibrium pressure. But how do I get to that? आप x के लिए solve करो. Kp is going to be equal to this times this. It's as simple as that. You get a nice quadratic equation over here. इसको solve करो. Can you guys solve this quadratic equation for me, guys? Give me inputs. अगर आप लोग खुद कर सकते करो, कैलकुलेटर जैसे करना है करो. But give me the answer to this, please, guys. Let's keep it a little interactive. और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बताओ. यहां पे on solving this, you will get two roots. कैसे मिलेंगे दो रूट? Use that formula. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. ठीक है, b है 0.5, right? This is b right over here. Okay. और फिर a into c into 4 is this value right over here. Minus 0.24. क्यों? क्योंकि there's a negative sign over here. ध्यान से करो ये सब चीजें. बेसिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. Make sure you do this slowly and carefully. ठीक है. जब once you do this, make sure you don't forget the 2 in the denominator. एंड ये सब करने के बाद आपको मिलता है ये दो ऑप्शंस, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -0.1 और -0.6. वी विल डिस्कार्ड दिस वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है यार. नेगेटिव मतलब एसोसिएट हो रहा है. बाय द वे, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? अच्छा, यू रोट 0.05 इंस्टेड ऑफ 6. इट्स ओके यार, इट्स ओके. होता है कॉम्प्लेक्स, कोई टेंशन नहीं है. सो भाई, वी आर बैक. सोहेल, थैंक यू. सोहेल हिटिंग द मार्क ऑन द हेड. सोहेल से 0.7. ओके. हाँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड आशा, आई अंडरस्टैंड. तो यही चक्कर है ना कि आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है जहां पे भी आप पढ़ते होंगे. अप्रोक्सीमेट कर लो या फिर यू डू दिस. एंड माय सजेशन इज यार, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो. दोस थिंग्स आर हायर ऑर्डर थिंग्स वेयर यू शुड नो वेयर अप्रोक्सीमेशन वर्क एंड वेयर दे डू नॉट वर्क. लाइक यहाँ पे देखो, अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है. हियर यू कैन नॉट अस्यूम कि 0.5 प्लस एक्स इज द सेम एज 0.5, राइट? यू कांट डू दैट, है ना? बिकॉज देखो, एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है 0.1. Now let me tell you why you cannot approximate. देखो, you can approximate only अगर वैल्यू 5% से कम है. यहाँ पे तो देखो 0.1 by 5 मतलब कि भाई 20% है. So you cannot ignore that. You cannot write 0.5 plus x is same as 0.5. हाँ, इसीलिए ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Otherwise I think you get the answer. आशा, no problem. कोई टेंशन नहीं है, हम लोग साथ में करेंगे. ठीक है? Okay. Once you solve this, I'm proving to you कि बार बार आप लोग वो क्विक हैक वाला चीज नहीं कर सकते. This is what this question is proving to you. Okay. So pressure is 0.7. Excellent work there. Sohail, hats off to you. बहुत सही. ध्यान से करने वाला सवाल. ओके, मैं बोल रहा हूं ये मुश्किल सवाल नहीं है, बस ध्यान से करने वाला है. इट टेक्स टाइम, लेट इट टेक टाइम. जेई मेन में भाई 25 ही सवाल है. कितने सवाल है ना? चिल है, बहुत कम टाइम, बहुत टाइम है, आराम से करने वाली चीजें. एंड यू डोंट हैव टू गेट ऑल द क्वेश्चंस राइट. यू गेट सम क्वेश्चंस राइट, यू गेट 50% क्वेश्चंस राइट, यू विल गेट अ 5000 रैंक यार. और क्या चाहिए लाइफ में? नीट वालों बेचारों को कितना करना पड़ता है टू स्लॉग देम टू गेट एवरी क्वेश्चन राइट, एंड देन भी उनको जो मारामारी करनी पड़ती है. You guys are chill. I'm not belittling anything. I'm saying कि be smart. Pick the battles that you can fight and play to your strengths. चलो अगला सवाल देखते हैं. A mixture of 1 mole of water and 1 mole of carbon monoxide is taken in a 10-liter container and heated to some temperature. At equilibrium, ये है 2023 का अप्रैल का सवाल. अप्रैल या जैन का देखना पड़ेगा. At equilibrium, 40% of water by mass reacts with carbon monoxide according to this equation. The equilibrium constant क्या होगा for this reaction? अब देखो, एक और फर्स्ट प्रिंसिपल आइडिया. कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बहुत बेसिक चीज है ये. बट अगर आपने बहुत फॉर्मूला मत किए तो लाइफ मुश्किल होगी. लाइक अरे अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं भाई, राइट? सो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने वाला सवाल है. और ये भी देखो रिसेंट जेई का है. फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब क्या है बताता हूँ आपको, तुरंत बताता हूँ. यू आर स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ दिस. मतलब इसका एक है, इसका एक है. ओके, and then you take a 10-liter container. We'll see if this is important or not. बाद में देखेंगे. 40% चला जाता है, मतलब इसका 40% कुछ हो जाता है. Like at equilibrium, some other concentrations are formed. That's it. Form this and make sure that your answer is Kc into 10 power 2. I'm going to give you 45 seconds to solve this one. Try करो. अगर ये सवाल फिर से रिपीट करना है, कुछ करना है, tell me. I'm here to do all of that. But for those who have understood it and वो लोग जल्दी करना चाहते हैं, उनके लिए करिए आप. अगर कोई चाहता है कि इसको फिर से कुछ एक्सप्लेन किया जाए, बताइए. I will do that. Chapter name. प्यारा सवाल है आपका. It's all right. Shubdeep, good evening. Good evening. Yeah. All right. Try this question out, guys. Try this question out. Yeah. Just to keep the pace going, I'm giving you some timers. But अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ जल्दी हो रहा है, tell me. I'll explain again. कोई टेंशन नहीं है. We are not in any hurry. The timer is just to say कि ideally it should take you this much time to solve it in the paper. Ideally. नहीं होता है अभी तो कोई टेंशन नहीं है. जेई में बहुत टाइम है, 3-4 महीने फर्स्ट पेपर के लिए.
अब अप्रैल में देखो तो भाई बहुत टाइम है, पता नहीं कितने महीने, 6 महीने है ना, 6 और महीने। खैर, हुआ सवाल किसी से? हुआ नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, बट हुआ तो बता दो, आंसर बता दो, ठीक है। 44, आशा, आशा, लव दैट, ओके। आशा is saying 44. Do you agree with Asha? Okay, Asha and Shubhadeep are saying 44. भाई साहब, you guys are on fire. I like it. I like it. ठीक है, पहली बात नोटिस करने की, पहली बात देखो, आई डोंट केयर अबाउट द वॉल्यूम। ये जो 10 लीटर कंटेनर है, आई डू नॉट केयर, क्योंकि यहां डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। देखो डेल्टा एन यहां पे क्या है, डेल्टा एन इज 2 माइनस 2। डेल्टा एन क्या, डेल्टा एन जी गैसियस मोल्स नहीं है, देखो। सो आई डोंट केयर अबाउट द वॉल्यूम, दैट्स इंपॉर्टेंट, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप, बिकॉज दो लोग मुझे आंसर दे दिए, आई एम गोइंग अहेड सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। अगर इफ समबडी वांट्स मी टू वेट और कुछ और इनपुट चाहिए तो प्लीज बताओ, आई एम हियर, ठीक है। दिस हाउ वी आर गोइंग टू पेस इट, ठीक है। इफ आई गेट अ कपल ऑफ पीपल गिविंग मी आंसर्स, आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड गिव यू गाइस द सॉल्यूशन। इफ यू वांट मी टू वेट, प्लीज पिंग ऑन द चैट से प्लीज वेट, हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन मत दिखाइए, वी विल डू दैट। दिस लाइक अ एक्चुअल क्लास फेस टू फेस, सेम ही चीज है, ठीक है। t इक्वल टू 0 में कितना है, 1 1 एंड 0 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम में अब देखो यार, whether it is 40% by mass or 40% by mole, it doesn't matter. In this case, it does not matter. In this case, big asterisk, okay. कोई फर्क नहीं पड़ता है, by mass और by mole. 40% is 40%, right? 40% हो गया कम, ठीक है। तो मतलब इतने बचे। So I have how much left? 0.6 left, 0.6 left, and then ये। अब इसके बाद क्या करना है यार, just form the KC expression, 0.4 square by 0.6 square, that's 2 by 3 the whole square, that's 4 by 9, 4 by 9 is 44%, ठीक है, not 44%, sorry, 5%, 44 into 10 power minus 2, right, 44 into 10 power minus 2, ठीक है, all right, perfect, 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 yeah, exactly, exactly. इस सवाल में आई थिंक आई मिस्ड अ -2, मैंने गलती की कि मैंने -2 नहीं लिखा, मैंने आज ही सुबह इसको बनाया था, बोले ये तो अच्छा सवाल है, इसको डाल देते हैं इसमें, ये डाल देते हैं। एक मिनट 0.4 को एक, अरे ओके 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 ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, होता है कॉम्प्लेक्स। देखो मैं आपको हड़बड़ी में करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप अपने पेस पे करिए, ठीक है। बिकॉज देर आर इन अ सेशन, राइट, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं वांट टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू केटर टू एवरीबॉडी। तो ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग टू दोस पीपल हु आर इन अ हरी, ओके। बट अगर आपको टाइम ना, टाइम लो, वो मेरी बात आप इग्नोर करो, द क्वेश्चन विल स्टे हियर, क्वेश्चन कहां जाएगा, है ना। अब आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स एंड एवरीबॉडी एल्स हु इज डूइंग इट लेटर एज वेल, ठीक है। तो 0.44 इज व्हाट आई हैव गॉट ओवर हियर, मतलब इट इज गोइंग टू बी 44 into 10 power minus 2, या आई मेड एन एरर इन द क्वेश्चन, यहाँ पे 10 power minus 2 लिखना चाहिए था, मैंने वो यहाँ पे 10 power 2 लिख दिया था, खैर छोड़ो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अप्रोक्सीमेट नहीं करना कॉम्प्लेक्स, यही तो हम आपको बता रहे हैं, देखो आई एम गिविंग यू प्रूफ कि भाई फॉर्मूला मत करना इज नॉट द वे आउट। आई डोंट मीन इट इन नेगेटिव वे, कभी 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 रटना पड़ता है, बट मोस्टली जेईई मेन में फिजिकल केमिस्ट्री में कम रटना पड़ता है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है थियोरी के लिए, बट क्वेश्चन यू गॉट टू सॉल्व। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये इतना प्यारा सवाल है कि ये 15 सेकंड में भी हो सकता है और 2 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ 15 सेकंड वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन एंड देयर इज अ 2-3 मिनट वे आल्सो ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम A gives B plus half C, dissociation constant K in terms of degree of dissociation alpha and equilibrium pressure, मतलब this is total pressure at equilibrium, ठीक है, यही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज छोटा p लिखा है इसका ये नहीं मतलब ये पार्शियल प्रेशर, दिस इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इन दोनों के टर्म्स में क्या है, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, करो। दिस इज हार्डकोर, हार्डकोर क्या भाई, हार्डकोर अल्फा निकालना ही पड़ेगा। देयर इज अ शॉर्टकट बिकॉज इसमें ऑप्शंस हैं, बिकॉज दिस हैज ऑप्शंस देयर इज अ शॉर्टकट, दैट्स माय हिंट टू यू, ठीक है। बट आपको एक एक्सप्रेशन तो लिखना पड़ेगा, बट एज सून एज यू मेक दैट वन एक्सप्रेशन, एक चीज दिखेगी, अगर वो चीज दिख गई तो बहुत जल्दी हो सकता है सवाल, ठीक है। बाय द वे, फॉर टू पीपल हु हैव जॉइंड अ लिटिल बिट लेटर आफ्टर आई स्टार्टेड, मैं बस यही बताना चाहता था कि देखो मेरे पीछे बिहाइंड मी इज दिस थिंग्स ऐसे लिंक टू पार्ट 1, लिंक टू पार्ट 2, ठीक है। सो हाउ आई एम डूइंग दिस सेशन इज मैंने अब जस्ट स्प्लिट इन 2 पार्ट्स ताकि आपके पास ब्रेक हो बीच में, ठीक है। मैं इक्विलिब्रियम ही कर रहा हूं पहले और दूसरे पार्ट में। सो एंड दीज नोट्स आई विल गिव इट यू टेलीग्राम पे आफ्टर द 6 o'clock सेशन गेट्स ओवर, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर टू पीपल हु जॉइंड अ लिटिल लेट। तो डोंट वरी, पेन और पेपर लेके सॉल्व करो, ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई टेलीग्राम पे, टेंशन मत लो, ठीक है। सोहेल आई मिस्ड इट, सॉरी आपने डिट्रैक्ट भी कर लिया, यू थिंक इट विल बी बी। शुभदीप, शुभदीप, वाह 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 वाह, शुभदीप
says B. Okay, what right, this guy's chap's name. You're not, no, that's all right. That's all right. So Hale also says B. Okay, okay. Do you guys want more time for this? I think they figured it out. I think they figured out क्या छोटी सी हैक थी, और मे बी दे इवन सॉल्व इट, पूरा सॉल्व किया. अगर पूरा सॉल्व किया तो भाई गुड जॉब, लवली. इफ यू एक्चुअली सॉल्व द होल एक्सप्रेशन, वेरी नाइस. अदरवाइज अगर ट्रिक निकाली है ना तो भाई मजा आ जाएगा. अब मैं पहले आपको ट्रिक बताता हूं बहुत जल्दी से. ओके, लेट मी टेल यू. आशा ऑल्सो सेइंग बी. ओके, ऑसम 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 ऑसम. ऑल ऑफ यू आर करेक्ट यार, गुड जॉब. बट कैसे करोगे अगर ये चीज, यू आर श्योर? गुड जॉब सोहेल, यस एब्सोल्युटली. देखो, अगर ये अल्फा वाला निकालने वाला ध्यान में नहीं आ रहा है ना, पीडीएफ में मैं तुमको आपको लिंक दूंगा. यू क्लिक ऑन दिस इज अ क्लिकेबल लिंक टू माय सेशन वेयर आई एक्सप्लेन हाउ टू गेट दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आई नो यार, बहुत लोग अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, अरे जेई अभी आ रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बेसिक्स भी नहीं याद है कोई नहीं, लिंक क्लिक ऑन दिस लिंक, आई विल गिव यू पीडीएफ, यू विल गेट दैट. खैर, हाउ डू आई गेट अल्फा? यहाँ पे अल्फा का एक्सप्रेशन, राइट? पहले मैं लिख लेता हूं, एट टाइम इक्वल टू 0 नथिंग इज देयर, एट इक्विलिब्रियम 1 minus alpha, alpha and alpha by 2. How did I get this? How did I get this? Okay, देखो, two ways to check. First, you put alpha equal to 0, then शुरुआत में सिर्फ reactant होना चाहिए. If I put alpha equal to 0, only reactants. And yes, that happens. If I put alpha equal to 0, then हो जाता है यहाँ पे 1, 0 and 0. यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, will get confusing. But yes, this works. Alpha equal to 1 डालो, क्या होगा? Alpha equal to 1 only products and in stoichiometric ratios. चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो. देखो, इफ आई पुट अल्फा इक्वल टू 1, देन ये हो गया 0, देन ये हो गया 1 और ये हो गया 1/2, एंड दिस इज परफेक्ट, इट वर्क्स आउट. कभी कभी जल्दी में ना ए बी और हाफ सी देख के यू मे राइट 2 अल्फा. होता है यार, गलती होता है, लोग 2 अल्फा लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं. इट्स ओके यार, बट इट्स गुड टू चेक. गलती हो, नो प्रॉब्लम, बट इट्स गुड टू चेक. दिस हाउ यू चेक. पुट अल्फा इक्वल टू 1, सिर्फ प्रोडक्ट्स होने चाहिए इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है, दैट्स हाउ यू सेट अप अल्फा. दैट इज द बिगेस्ट थिंग टू डू इन दिस चैप्टर. एक बार वो हो गया तो भाई लाइफ आसान है. This is the trick. Was me? Absolutely right. Absolutely right. You're right. Now, this is how you get the total number of moles to be 1 plus alpha by 2. यहाँ पे n is basically total moles. Okay. ये थे initially, ये है at equilibrium. तो at equilibrium अगर 1 plus alpha by 2 है, तो partial pressure निकालना पड़ेगा. Partial pressure is going to be, what is partial pressure? Partial pressure is mole fraction टाइम्स टोटल प्रेशर. तभी तो आपको मिलेगा केपी का एक्सप्रेशन, राइट? द केपी इज इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो वो निकालना पड़ेगा. तो उससे पहले निकालो मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन इज मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, राइट? यही हमने यहां पे किया. देखो, 1 minus alpha by 1 plus alpha by 2, alpha by 1 plus alpha by 2, alpha by 2 by 1 plus alpha by 2. अब देखो, from here you get the 30-second way or 15-second way of doing it. ध्यान से देखो, look at this. अगर डिनोमिनेटर में 1 plus alpha by 2 है, जो कुछ भी होगा, न्यूमरेटर में कुछ स्क्वायर होगा, क्यूब जो भी होगा, then the denominator becomes 2 plus alpha power something, power some x, but denominator में 2 plus alpha होना जरूरी है. And that, my friend, is what the trick is. Look at the options. जल्दी से options देखो. सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 2 plus alpha. Mark this, go on. Mark this, go on. That's all you have to do. बाकी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो. Spend some time. If you want practice, solve it. You will get this to be the answer. कोई डाउट ही नहीं है. But this is a quick way of doing it. Did you guys like that? ये मैंने कुछ बड़ी चीज नहीं की है. ये बस थोड़ा ध्यान से, ये आराम से करने में ये दिख जाएगा. अगर हड़बड़ी करेंगे तो हो सकता है ये चीज मिस हो जाए. अगर ये चीज मिस हो जाए ना, देन आप पूरा कैलकुलेट करोगे उसमें, इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम. एंड भाई, ऑल्दो जेईई में बहुत टाइम होता है, बट सम क्वेश्चंस आर मेंट कि वहां पे आप ट्रिक निकालो और उसको सॉल्व करो. दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है, एक्सीलेंट वर्क ऑन एवरीबॉडी फिगरिंग आउट दिस. यस कॉम्प्लेक्स, यू आर राइट. रेक, यू लाइक दैट? यू लाइक दैट? मुझे, so that's the thing, the questions I really like I bring to you. This is a question I really like because of this. I really like this. क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रिक से तुरंत कर सकते हैं. और जेईई बहुत सालों से एक दो सवाल हमेशा, और एक्चुअली 4-5 सवाल हमेशा छुपाया ऐसा रहता है जिसमें हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं. एंड दोज आर द वंस दैट सेट यू अपार्ट. वो अगर जल्दी हो गए तो फॉर एवरीथिंग एल्स यू हैव अ लॉट मोर टाइम. चलो अगला सवाल देखा जाए. एक और जेईई का सवाल जो है 2023 अप्रैल या जनवरी के सेशन से. 4 चीजें हैं. अगेन न्यूमेरिकल एंट्री है भाई. देखो, थियोरी पूछ लिया न्यूमेरिकल एंट्री में, कंसीडर, और बहुत बेसिक थियोरी है यार, बस पढ़ के जाओ ध्यान से.
consider the following equation. 2SO2 plus O2 gives this thing right here. Delta H value is given. The number of factors which will increase the yield of SO3, मतलब forward reaction, मतलब use the basics of LCP यार, Le Chatelier's principle. From the following is this. कितने? How many of these? The answer is a number. How many of these will make the reaction go forward? सोच के बताओ यार. ये भी मुझे सवाल अच्छा लगा. This is testing theory and easy 4 marks. प्लीज ट्राई करिए इसको. ट्राई करिए. व्हाट डू यू थिंक? इसको कैसे किया जाए? 4. Complex is saying 4. Okay. Complex. Your name's funny, bro. Complex is saying 4. ठीक है. All right. Good job. जल्दी से आपने आंसर दिया. बहुत सही किया. बहुत सही किया. What about the rest? What do you think? जो अभी चैट पे हैं, maybe you're watching it not so live. क्यों यार? लाइव देखो मजा आता है. But it's okay, I understand. Timing का भी चक्कर होता है कभी-कभी. Okay. Shubha is saying, Shubhadeep is saying 3. Okay. ठीक है. Cool. आप बोल रहे हैं 3. क्या किया जाए? Exothermic reaction. Asha has spotted something very interesting. She's saying exothermic. Yes. Exothermic होता है तो क्या होता है? Exothermic में you can write heat as a part of the reaction. ये scam way है, but scam बता ही देता हूँ. So you write delta H on this side, okay? तो मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, मतलब you're adding heat into the system. Take it like a reaction input output, ठीक है? तो अगर टेम्परेचर है तो मैं हीट डाल रहा हूँ and that heat is on the RHS, तो that it's not going to like that. The reaction will go backward. टेम्परेचर बढ़ाने पे के घट जाएगा. This is a scam way of remembering. असलियत तो आपको मालूम है. This is one of those cases जहां पे equilibrium constant की वैल्यू एक्चुअली बदल जाती है. बाकी केसेस में equilibrium रीएडजस्ट करता है, equilibrium constant नहीं बदलता है. But in this case, the equilibrium constant की वैल्यू ही कम हो जाती है. Exothermic heat रिलीज करेगा. Yes, rec. सोहेल, इसमें आपको पिक करना है नंबर. I think maybe I was not clear. You have to give a number as the answer over here. You're right. B is correct. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. आशा आप ये वाला इनकरेक्ट होगा. इंक्रीजिंग टेम्परेचर गलत होगा. ओके, दैट्स द ओनली वन इन फैक्ट दैट विल बी इनकरेक्ट. एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट. आई विल वॉक थ्रू ऑल द अदर पॉइंट्स. इंक्रीजिंग टेम्परेचर गलत होगा फॉर श्योर, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि राइट हीट एज अ रिएक्शन प्रोडक्ट. ओके, यहाँ पे डेल्टा एच डाल दो. तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, दैट्स इक्विवेलेंट टू, गलत, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बट इट्स अ स्कैम. ठीक है, इक्विवेलेंट टू प्लस हीट. अगर मैं हीट यहाँ पे ऐड कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे तो हीट है दूसरी तरफ, तो मैं रिएक्टेंट में हीट डाल रहा हूं. दैट्स नॉट गोइंग टू लाइक दैट. सो इट्स गोइंग टू से कि थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में जाओ. सो दिस विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दिस इज अ स्कैम वे, आई रिमेंबर इट. आई एम श्योर कोचिंग में भी ऐसे पढ़ाते हैं. असलियत है वो ग्राफ से ही, वैन हॉफ इक्वेशन से ही पता चलता है, राइट, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो के घटेगा फॉर डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव. दिस इज एक्चुअल वे फ्रॉम द वैन हॉफ इक्वेशन. खैर, बाकी इंक्रीजिंग प्रेशर में क्या होगा देखो, यहाँ पे है डेल्टा एन इक्वल टू पॉजिटिव. अगर प्रेशर बढ़ रहा है देन इट विल गो इन द डायरेक्शन जहां पे जो है मोल्स कम हो रहे हैं. ओके, सो यस, मोल्स कम हो रहे हैं, मोल्स डिक्रीज फॉरवर्ड रिएक्शन में. तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. ओके, एडिंग मोर SO2 ऑब्वियसली फॉरवर्ड जाएगा. दिस इज इजी. एडिंग मोर O2 ये भी है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट ऐड करोगे तो भाई रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड में. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, यस, आई नो कि लास्ट वाला पॉइंट आप बोल सकते हो यार नेगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है, वी डोंट नो. कीप थिंग्स सिंपल. कैटलिस्ट अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज. कैटलिस्ट मतलब भाई रेट बढ़ा देता है. ठीक है, इन दिस केस लेट्स अज्यूम कि बढ़ा देता है. ठीक है, रेट बढ़ा देता है. कूल, ओके, बट ए होल्ड ऑन, इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3. एक मिनट सोचने दीजिए. 3 है कि 4 है दोस्तों? 3 है कि 4? लेट्स सी. हियर वी ऐड, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्लेक्स. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार सोचने दो. यील्ड, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज सी इफ यू इंक्रीज द कैटलिस्ट, मतलब कि यील्ड मतलब इक्विलिब्रियम तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? व्हाई विल इक्विलिब्रियम गेट अफेक्टेड? थिंक अबाउट इट. तो व्हाट डू यू थिंक, द लास्ट ऑप्शन, इज दैट करेक्ट और इज दैट इनकरेक्ट? सोच के थोड़ा बताइए. बाकी ऑप्शन तो आप समझ गए, राइट? बट कैटलिस्ट वाला क्या फंडा होगा? कुछ दिमाग में आ रहा है आइडिया? What does the catalyst do? It increases the rate of forward and backward reaction by equivalent amounts. इसमें जो है दिया हुआ है भाई, what do you call it? It is a double headed arrow. मतलब कि forward और backward reaction दोनों इफेक्ट होंगे. तो क्या होगा यार? इसमें कितने होंगे सही? 3 या 4? 3 या 4? What do you think? Hold on, I missed the chat. Let me open the chat फिर से. No effect. Yes, no effect. तो ये वाला भी हम लोग लाल कर देते हैं. I realize कि मैंने जो है
ये वाला भी सुबह ही ऐड किया था, जो सुबह ऐड कर गया था इसको हम लोग लाल कर देते हैं जल्दी से, हाईलाइट लाल। यस, फेवर करेगा सोहेल, बट सोहेल ये बात हो रही है इंक्रीजिंग यील्ड की। यील्ड इफेक्ट करना मतलब कि अल्फा, ओके, इफ आई इंक्रीज अल्फा दैट इज यील्ड, राइट? और इफ यू आर डूइंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, इतने टाइम में इतना बढ़ा सकता है नहीं बढ़ा सकता है, देन मे बी यस, यू आर राइट, यू आर राइट। बट आई फील कि लास्ट वाला पॉइंट नहीं काम करेगा, या बट व्हाट डू यू थिंक? आई एम ओपन टू डिस्कशन, कोई टेंशन नहीं है। मेरे हिसाब से दिस विल बी द आंसर। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप लोग क्या सोच रहे हो? लेट मी नो योर थॉट्स। या क्या बोल रहे हैं आप लोग? फेवर तो करेगा सोहेल, उसके बाद आपने कुछ बोला नहीं। वेटिंग फॉर योर आंसर। वी आर ओके राइट? 3 ये वाला थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द थियोरी। ये कैटलिस्ट वाली बात अगर मिस कर दिया तो भाई 4 आप लोग लिख दोगे। एंड देखो, बी केयरफुल। एंड शुभदीप, ह्यूज राउंड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर शुभदीप फॉर गेटिंग इट राइट। ओके, जल्दी में लगता है कि 4 होगा बिकॉज दिस वन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, पहला वाला, बट बाकी सब है, ये वाला भी इनकरेक्ट है, ठीक है? बिकॉज यील्ड नहीं इंक्रीज होगी, अल्फा डज नॉट इंक्रीज, ओके? यील्ड मतलब दैट विथ टाइम यू मे से कि इट मे रीच इक्विलिब्रियम जल्दी, बट से इट्स ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, राइट? उसमें कैटलिस्ट डाला तो क्या फर्क होगा? कुछ नहीं होगा ना। थिंक अबाउट लाइक दिस, ओके? यू फॉलो? देखो हम लोग थियरी सवाल में कितना टाइम लगाया ना, बिकॉज जरूरी है यार, थियरी मतलब इज फैसिनेटिंग, इजंट इट? ओके, कोई अरे नहीं, सॉरी वॉरी की बात नहीं है, हम लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं यहाँ पे। वी वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री, एंड एक बार करके खत्म किया, विल नेवर फॉरगेट इट। यस शुभदीप, excellent work, excellent work. Next question. Given the following reaction at equilibrium, N2 plus 3H2 plus 2NH gives 2NH3, some inert gas at constant pressure, अरे बाप रे, yes, we have started doing this, is added to the system. Predict which of the following facts will be affected. Since ये JEE main का सवाल है, you are lucky, सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है। अगर JEE एडवांस का होता तो फिर थोड़ा और ट्राई करना पड़ता, बट आई थिंक यू कैन गेट टू द आंसर क्विकली ओवर हियर। ट्राई करो। आई फील दिस कुड बी अ 30 सेकेंड क्वेश्चन इफ यू जस्ट डू इट केयरफुली। अरे वाह सोहेल, गुड इवनिंग अजय, मीना, सिकर जी। ओके, सो सोहेल सेज दैट बी इज द आंसर। प्रणाम प्रणाम, करिए सवाल करिए अजय जी, अजय मीना। रेक ऑल्सो सेज बी। ओके, बढ़िया बढ़िया, लगता है कि द 30 सेकेंड थिंग वर्कड आउट। हाँ, अजय इज सेइंग बी एज वेल एंड complex is saying A. तो looks like we are focused, we are almost sure कि या तो A होगा या तो B होगा, right? C नहीं होगा और D नहीं होगा। That is good. That is good. That's a good start. Why will Kp be affected? हम लोग टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं, okay? And no effect on equilibrium नहीं होगा, right? Delta Ng is not equal to 0, which is why option C can be removed. Okay, great. Now between these two क्या करें? ठीक है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अच्छा, नो इफेक्ट इक्विलिब्रियम भी आप लोग सोच सकते हैं, इनर्ट गैस ऐड की क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, इनर्ट गैस इज नॉट सपोज्ड टू एनीथिंग। देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन यू ऐड एन इनर्ट गैस, व्हाट आर यू इफेक्टिवली डूइंग? कांस्टेंट प्रेशर मतलब पिस्टन आसानी से ऊपर नीचे जा सकता है, राइट? कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कुकर, है ना? थिंक अबाउट इट लाइक दिस, ओके? इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। चक्कर यह है कि वॉल्यूम अब बढ़ गया। अब वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो भाई पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर मतलब जो प्रेशर डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर, राइट? प्रेशर ऑफ दैट गैस। क्यों प्रेशर कम? क्योंकि वही वॉल्यूम बढ़ गया, टोटल प्रेशर सेम रहा, बट यार इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर कम हो गया, पार्शियल प्रेशर कम हो गया। नाउ बिकॉज पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस, द सिस्टम मूव्स इन अ डायरेक्शन टू इंक्रीज द प्रेशर। अब सिस्टम कैसे करेगा प्रेशर को इंक्रीज? When it tries to increase the moles, it goes in a direction where number of moles is increasing. तो ये जाएगा backward reaction में. This is going to go in a backward reaction. Okay. No problem, Asha. You've been around. All good. Okay, Ajay. Test series. I don't have a test series. I'm an employee of Byju's. We make amazing tests as a part of app पे जाओ, Aakash Byju's app पे जाओ. You'll take all the tests that my team has made. Okay. You follow this, guys? Constant volume, no effect. Complex is absolutely right.
हम लोग देखो थियोरी भी रिवाइज कर रहे हैं, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। व्हाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट? एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देते, बहुत बहुत प्यारी चीज उन्होंने बोली है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पार्शियल प्रेशर डज नॉट चेंज। ओके, P को लिख देते हैं, व्हाट इज P? दिस इज पार्शियल प्रेशर। सिंस पार्शियल प्रेशर डज नॉट चेंज, Kp डज नॉट चेंज। अरे बहुत लिखना पड़ेगा, Kp कांस्टेंट लिख देता हूं, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। बट एट कांस्टेंट प्रेशर, सिंस डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल टू 0, इट विल गेट अफेक्टेड। इन व्हाट वे? इसको ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं। ओके, देखो वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि प्रेशर घट गया। नाउ सिस्टम वांट्स टू अनडू दैट चेंज। हर जगह इक्विलिब्रियम में यही होता है, जो भी चेंज किया सिस्टम ट्राइज टू अनडू दैट चेंज। इवन इन द होल लेंस लॉ, जो भी आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, सब जगह यही आइडिया होता है। एडी करंट क्यों होते हैं भाई? क्योंकि यू हैव क्रिएटेड डिस्टर्बेंस, सिस्टम वांट्स टू अनडू दैट डिस्टर्बेंस। यही हो रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द डिस्टर्बेंस? मैंने प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर कम हो गया, पार्शियल प्रेशर। सो नाउ आई वांट टू इंक्रीज द प्रेशर। हाउ कैन आई इंक्रीज प्रेशर? बना दो मोल्स, बना दो मोल्स, बना दो मोल्स। इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। सो NH3 कम हो जाएगा। That's it, that's the answer. Cool. Theoretical but fun. Okay. Equilibrium is easy, isn't it? एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अरे एक और इसी आइडिया पे, the value of delta H for the reaction is less than 0. Delta H equal to negative. ठीक है? The formation of XY4 will be favored at XY4 का formation, मतलब I want to take this one forward reaction. कैसे करेंगे? आशा, आर यू ऑल राइट? ठीक से समझ में आ गया कैसे हो रहा है? आई रिमेंबर दैट यू हैड सेड समथिंग अबाउट डेल्टा एच इन द लास्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे अप्लाई करो, ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। या इस सवाल को सवाल ट्राई करते हैं। अजय, आर यू हियर? लेट्स ट्राई दिस वन आउट डूड। सोहेल सेड अल्फा विल डिक्रीज, सो प्रोडक्ट डिक्रीज। अच्छा, प्रोडक्ट डिक्रीज, श्योर 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 श्योर। alpha will decrease, let me think about that. Yeah, okay, yeah, sure. Try this one out, guys. Try this one out. Can you guys try this in like 30 seconds? Yeah, I'm going to give you 30 seconds to do this. I'm trying to make more of product. Matlab, I want to form XY4. Okay. And it's saying that delta H is negative. Agar delta H negative hai, then as temperature increases, Kp will fall. Kp, Kc, whatever, दोनों हट जाएंगे। ठीक है। Sohail is saying option D is the right answer. Low temperature, I agree with Sohail. लो टेम्परेचर के दो ऑप्शन है, मतलब सी और ए को हम लोग कर दें, हटा दे तुरंत। नाउ ऑल वी हैव टू डू, अरे ये भाग जाता है भाई साहब, ठीक है 30 सेकंड्स हो गए लगता है। लो टेम्परेचर ये और ये है, इसको हटा देते हैं, रादर देन टेकिंग दीस, लेट्स मूव दीस। अब नाउ लेट्स जस्ट फिगर आउट हाई प्रेशर या लो प्रेशर। रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पे डेल्टा Ng is greater than 0. Greater than 0, less than 0 doesn't matter, is not equal to 0. Okay, now this is how I remember it. अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, then system tries to reduce the pressure. How will system reduce the pressure? By reducing number of moles. So the reaction goes in the direction where it will try and reduce moles. That's it. That's it. But क्यों? देखो, delta n less than 0 मतलब forward reaction का हमको निकालना है. And this is the Van 't Hoff equation. It clearly says कि you got to, reduce temperature for K to go forward. Okay, for K to go to a bigger value. And I want to reduce moles, right? That's the forward reaction. Reduce moles tab hoga, increasing pressure would make the system reduce the pressure. Yeah, that's the counter action, so to speak. So obviously pressure बढ़ाइए, temperature घटाइए, and both of these are very very favorable to formation of XY4. Yes, Rek, Ajay, Shubhadeep, Uttam, excellent work, excellent work. Next question पे जाया जाए. Shall we go to the next question? You guys are very very quick. You guys are very quick. मुझे लगा कि इतने सवाल करने में 1 घंटा लग जाएगा, पर आप लोगों ने जल्दी कर लिया। लगता है we'll have time for some bonus questions. I have some advanced JEE advanced के सवाल भी, अगर टाइम मिला तो करेंगे, since इसमें ही थोड़ा टाइम है। Let's do some ionic वाला part also now. मैंने पहले सोचा कि पहले करेंगे फिजिकल, फिर ionic करेंगे दूसरे सेशन में, but let's start right now. नहीं क्वेश्चन थोड़ी ना ओवर। आयुष, what are you saying? 2 सेशंस है भाई, 1 at 4:30, 1 at 6. Yes, absolutely right, आशा आंसर डी होगा ना, रिएक्शन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही, देयर यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट दैट इज गिवन एट ऑप्शन डी। या अरे भाई अजय, लवली।
अरे वो आपने टीवी शो देखा था क्या, अजय मीना जी, क्या नाम था यार उसका, कोटा फैक्ट्री, आई थिंक उसमें भी उनका नाम अजय मीना था, राइट, हिज फ्रेंड, वेरी वेरी नाइस एक्टर, ब्यूटीफुल एक्टर. Sohail, एक मिनट, let me scroll up. What did you say? If you said D, then you're absolutely right. Yes, Sohail, you're absolutely right. Salik, absolutely, man. Akash, Byju's, bro. Tension क्या है? But you got to do practice, huh? I don't want to get your ego up very high. Practice करना पड़ेगा. NCERT ये पूरा करिए. A lot of students think कि भाई हम लोग 1000 बुक कर लेंगे, ये बुक ये फलाना. पहले करो NCERT. Inside out करो NCERT. I'll prove it to you. मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा आयोनिक में. एग्जैक्टली एनसीईआरटी का सवाल है, थोड़ा नंबर बदल दिया है बस. इनफैक्ट एनसीईआरटी ज्यादा आसान सवाल है, एनसीईआरटी वाला थोड़ा मुश्किल था, उसमें कैलकुलेटर की जरूरत है. आई शो यू एनीवे. खैर, बात आराम से करेंगे. जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अगेन कि भाई मेरे पीछे है लिंक पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो का. क्लिक ऑन दिस, यू विल टू वॉच द वीडियो. यू डोंट हैव टू वरी, नोट्स होंगे, ये नोट्स टेलीग्राम पे दिए जाएंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पीएच ऑफ अ वीक एसिड. ओके, एंड यहां पे ये थे अप्रोक्सीमेशन वाला आइडिया. इफ यू टेक अ मोनोबेसिक एसिड, आई वांट टू राइट दिस डाउन वेरी वेरी बिग वर्ड्स. मोनोबेसिक एसिड यानी कि फॉर HA, नॉट फॉर H2A और H3A. बहुत जरूरी है ये, ठीक है. दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ इज नॉट फॉर दीज, इट इज ओनली फॉर मोनोबेसिक एसिड. ओके, ये जो यहां पे स्लाइड पे जो भी लिखा हुआ है. ओके, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट व्हिच इज नाइस येलो कलर. फिजिकल गजब है, लवली लवली. ऑर्गेनिक भी गजब हो जाएगा. Oh, great, Sohail. Good to know. Good to know. Yes, Ayush, you are right, but you are talking about pH of a strong acid. For a weak acid, things are a little bit complicated. Since this is a PYQ session, I'm not doing the theory. Ayush, if you want to check out the theory, check out the link in the description. I've linked the whole equilibrium things on the NEET channel. You can check that out. Okay? You're right, Ayush. Generally, pH is just log of negative log H plus ion concentration. For a weak acid, ये सब मैंने approximation यहाँ पे लिखे हैं. If you want me to derive it, I can quickly do that. I mean, just take literally like 30 seconds, right? HA gives you H plus A minus. These are all weak things, ठीक है? Ka is H plus whole squared divided by HA, ठीक है? Now you take negative log on both sides. That's all. मैंने यही किया है. So I've taken H plus whole square because the concentration of H plus is going to be the same as A minus, right? इन दोनों का same होगा. And this is your expression. Then you take negative log. When you take negative log, you will get a funky equation. खैर, C alpha and all we can do, but don't worry about that. ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? Where do I don't have space over here. I'll go to the next slide. HA gives you H plus A minus. Because Ayush ask कर रहे हैं. आप लोग I know, आप लोग तो माहिर हैं. You guys already know all of this. आप लोग 1000 बार कर चुके हैं. But ठीक है. For Ayush's benefit, we will do this. ठीक है? C alpha, which is C alpha whole square divided by C into 1 minus alpha is equal to Ka. ठीक है? Now, if I take this, I need to find what is C alpha, right? So I say कि अच्छा H plus whole square is equal to Ka times C. Why? Because I have assumed that alpha is very very small compared to 1. मतलब कि this is only if alpha is less than 0.1, मतलब 10% से कम. Actually, it is better to do less than 5%, but ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? And that if you simplify, you will get this. यहाँ पे negative log, now you Ayush you take and everybody else is doing this. Just take negative log on both sides and you will get this expression. ठीक है? What is P? अगर left में लगा दिया P, P मतलब कि is a function like negative log of whatever. P अगर मैंने लगाया है, तो it's just negative log of whatever is there. P of anything is equal to negative log of whatever that thing is. So P के A मतलब कि negative log of Ka. All right, ठीक है, ये सब आपको मालूम ही है. मैंने लास्ट टाइम पहले बताया था ऑलरेडी. अच्छा, हम लोग टेम्परेचर और के बीच में कुछ रिलेशनशिप है. नाउ दिस इज आवर मेन फोकस इन आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट? पानी का डिसोसिएशन. नाउ दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडो मतलब कि डेल्टा H इज पॉजिटिव, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो Kw बढ़ गया. Kw क्या है? दिस इज आयोनिक कांस्टेंट, राइट? 10 पावर माइनस 14. Kw मतलब कि दिस वैल्यू कैन इंक्रीज, कैन बिकम 10 पावर माइनस 12 हाइपोथेटिकली. अगर टेम्परेचर घटा तो Kw भी घट जाएगा. So this will basically be something like say 10 power minus 16. So now in this case, pH of neutral water, right? This will become 6. For this, it will become 8. I'm going a little quick on this. I hope this is okay. ये सब आपको theory मालूम ही है. हम लोग सीधे PYQs करेंगे. All right. See you, Sohail. If you are around, हम लोग 6 बजे फिर से मिलेंगे. Okay. Here's a quick question. Buffer करते हैं. Is this a buffer? Just a quick interaction. Yeah, we'll start with questions soon. Is this a buffer? I am adding CH3COH and NaOH in a 1:1 mole ratio.
व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट्स में बताइए प्लीज, बताइए. व्हाट इज what you call it? Is this a buffer? Not what. Is this a buffer or not? Nah, I usually have to read about that theory, bro. Buffer is something that resists a change in pH. Okay. 4:30 और 6 बजे on Saturdays, अजय मीना जी. That are my timings. Those are my timings as of now. ये बफर है कि नहीं? देखो, CH3COH and NaOH. What is a buffer? This is an acid, a weak acid, and salt of its conjugate base. Now, when I react both of these, this is complete neutralization. So what I get is not a neutral product. I get a salt. I get CH3CONA. Now, iska to hoga hydrolysis. I understand that, but this is definitely not a buffer. No, ये buffer नहीं है. It is not a buffer. Shubhadeep, understand why? Complex fast, huh? Fast. Okay, I like that. I like that. I like that idea. No, complex saying no. Rek is also saying no. Shubhadeep बोल रहे थे हाँ. Shubhadeep, you understand why it's not a buffer? ये वाला थोड़ा tricky था. देखो, 1:1 रेशियो में बफर नहीं होगा. अब देखो अगला वाला पार्ट देखो. शुभदीप अगर नहीं समझा तो बताना. अगला वाला पार्ट देखो. अगर if you take 2:1 रेशियो लिया तब क्या होगा? 2:1 में देखो क्या होगा. बताओ. Yes or no? What do you think? बताओ बताओ तब तक I'll explain. 2:1 यानी कि 1:1 तो हो गया पूरा न्यूट्रलाइज, मतलब CH3CONA, और बचा कितना? 1 of CH3COOH. So in a sense, what you have is 1:1 of both of these. ठीक है. अब ये तो हो गया तुम्हारा बफर. This is a buffer, right? Because you have a weak acid and salt of conjugate base, which is this guy, right? So ये हो गया buffer. This is a buffer. Yeah. Asha, yes. Yeah. Shubhadeep, great. This one is a buffer. Okay. Cool, right? देखो, this can be one of those questions. अगर तुमको 4 ऑप्शंस दे दिए, बोलो कि टेल मी हाउ मेनी ऑफ दीज आर बफर्स. दिस कुड बी अ क्वेश्चन. जेईई में आ सकता है, जरूर आ सकता है. व्हाट अबाउट दिस वन? ये हम समझ नहीं पाए कॉम्प्लेक्स आपके शब्द, बट आपकी भावनाओं से हम हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी भावनाओं को. ठीक है. CH3COH प्लस NaOH, ये बफर है कि नहीं? व्हाट अबाउट दिस? मोल रेशियो 1:2. देखो, 1:1 हो जाएगा न्यूट्रलाइज. इट विल फॉर्म CH3COONA. बट यू हैव basically then 1:1 CH3CONA and NaOH. ये तो नहीं होगा बफर ना, because you have a salt or you have very very strong base. ये होगा नहीं. This is not going to be buffer. Yes, Rick, absolutely. Lovely, lovely. Yes, Asha, absolutely. चलो 3-4 मिनट बाकी है. एक सवाल कर लेते हैं, देखते हैं. मे बी लेट्स डू 2. अजय, इस बुक से करो सॉल्व. Okay, this is for advanced. I feel like a doctor, prescribing medicines, and this is for main. But पहले करो NCERT, exemplar, PYQs 20 से 23 के पहले ये सब करो, उसके बाद डू ऑल दिस. ठीक है. डायजोनियम सॉल्ट प्लस एनालिन. अच्छा, ठीक है, श्योर. ये सवाल करते हैं. Which of the following produces the strongest conjugate base in an aqueous solution? ऑर्गेनिक की बात की कॉम्प्लेक्स ने, और हम लोग ऑर्गेनिक के आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं. या आयुष, यू आर सॉर्टेड ब्रो. 10th में हो, यू विल एस इट. आशा, ओके कूल. यार आई हैवंट यूज्ड द बुक, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू. मैंने यूज नहीं किया तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकता ना. जो मैंने किया वही मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं. आई हैव डन जो मैंने किया था वो आपको बता रहा हूं, एंड आई फील इट्स मोर देन एनफ. NCERT प्लस PYQs प्लस एग्जाम्पलर, यू विल एस इट. NCERT के सारे सवाल किए, सच बताओ. नहीं किए तो करो. पहले बैक ऑफ द बुक क्वेश्चंस करो, उससे ही भाई लाइफ आसान हो जाएगी. सब्जेक्टिव सवाल करो, ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाएगी. ऑब्जेक्टिव आप टेस्ट में करो, बट पढ़ते समय सब्जेक्टिव सवाल करो. Samiran is saying C. Shubhadeep is also obviously C. अच्छा. तो Ayush is also saying C. Ayush, अच्छा. Ayush, I have taught you this. I remember. I have taught you this. Conjugate base. नहीं, I don't think I have. Did we equilibrium का किया था क्या? I don't remember. खैर. Let me give you a little bit of a truth. This question is from Karnataka CET. But the difference is Karnataka CET में सबके जो क्या बोलते हैं Ka वैल्यूज दी हुई थी. अब Ka वैल्यू क्या होती है? 1.3 into 10 power minus 2. Okay. Then 4 into 10 power minus 4. 1.8 into 10 power minus 5. और 4 into 10 power minus 10.
ये थी के की वैल्यू, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल करने के लिए के वैल्यू हटा दी, मैं बोला कि यार ठीक है, ये जेई का सवाल तो नहीं है बट अच्छा सवाल है, अगर के वैल्यू हटा दो तो। आर यू श्योर शुभदीप? द आइडिया इज परफेक्ट, द आइडिया इज परफेक्ट, बट देखो HCN इज अ वीकर एसिड, HCN इज अ वेरी वीक एसिड। क्यों? क्योंकि भाई CN माइनस काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके इसलिए HCN इज मच वीकर। लुक एट दिस, आई स्कैम्ड यू गाइस, ओके आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा आपको स्कैम किया है। स्कैम कैसे कि भाई बिना के वैल्यू देखे आदमी कैसे पूछ सकता है आपको ये सवाल, राइट? सो योर थिंकिंग इज करेक्ट शुभदीप, जो वीकेस्ट एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, 100% राइट, बट दिस इज द वीकेस्ट एसिड, ठीक है? अमंग दीज, इन दीज फोर, HCN इज द वीकेस्ट एसिड, ओके ओके यस। कॉम्प्लेक्स आइडिया बिल्कुल सही है, बट आई मेड द क्वेश्चन लिटिल हार्ड, दिस वंस ऑन मी। सो अगर HCl फॉर एग्जाम्पल इज स्ट्रॉन्ग एसिड, Cl माइनस बहुत वीक बेस होगा, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसलिए इस वाले का आंसर होगा HCN। कूल, ठीक है, मजा आया? ओके अब अगर मजा आया तो हम लोग मिलते हैं 6 बजे, टेक अ ब्रेक, पानी पियो, थोड़ा टहलो, दैट्स माई वे ऑफ स्टडिंग, आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट दिस हैबिट इन यू। कोई पॉइंट नहीं है 3 घंटा एक जगह बैठने का, कमर खराब होगी, पोस्चर खराब होगा, दिमाग में और जो है सर दर्द होगा। टेक अ ब्रेक, आई विल सी यू गाइज एट 6 o'clock, वी विल कंटिन्यू दिस, हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे सवाल हैं। हाँ ओके, कॉम्प्लेक्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ इट्स लेट फॉर आयुष, आई नो तुम्हारे लिए 8:30 PM। खैर आई हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस फॉर यू, एंड इफ वी हैव टाइम वी विल आल्सो डू अ कपल ऑफ एडवांस क्वेश्चंस। अभी के लिए I'll see you at 6. I'm closing this session because I want you to get the habit of taking breaks. बहुत जरूरी है ब्रेक्स लेना लाइफ में। ओके 6 o'clock पे मिलते हैं, अगर आप फ्री हो प्लीज आओ, थोड़ा लेट्स कॉल इट पानी स्लैश जूस स्लैश टहलने वाला ब्रेक। ओके 6 बजे मिलते हैं, मुझे बहुत मजा आया। टेल मी हाउ यू guys like this session, please share with your friends if you liked it, and feedback, any feedback in the comments is useful। अगले क्या करना है, whatever you guys like did not like, जो भी है ओपनली बताओ, खुल खुल के बताओ, ठीक है? मिलते हैं 6 बजे।